So in question number 4 we have this question here. They're asking us to maximize and minimize this whole graph. So let us do it in the same pattern that we have been doing till now. So we have to minimize this objective function, that is 3x plus 5y, and we have some constraints. So the constraints x comma y greater than equal to 0 indicates that the feasible region will be in first quadrant. Now for the rest two of them, the first one is x plus 3y greater than equals to 3. Let us find the points first. So we will consider, let us consider x plus 3y equals to 3, and then from here we can find out 2 points. That is, if we take x equals to 0, then y will be 1, and if we take y equals to 0, if we put 0 here, then x equals to 3, so it will be 3 comma 0. So we will use these 2 points to draw this line and to show the region, which feasible region it is satisfying. What we will do, let us do the zero test. Putting 0 comma 0, we can see that 0 plus 3 into 0 is not greater than or equals to 3, because 0 plus 3 into 0 is going to be 0, and 0 is not greater than or even it is equal to 3. Therefore the region is away from the origin. Okay, now we will do the same thing in case of the second one, that is x plus y greater than equals to 2. So we will consider, let us consider that x plus y equals to 2, and from here also we can get 2 points. Obviously, if we put x equals to 0, we get y equals to 2, and if we put y equals to 0, then we get x equals to 2. Now we will do the same zero test for this one. So putting 0 comma 0, what we can get, that is 0 plus 0, we are getting it is greater than equal to 2, which is not correct. Therefore we can say that the region is away from origin. Okay, now what we will do, we will draw these points and draw the line on the graph. So the first one is 0 comma 1. So let us suppose I am putting 1 2 3 1 2 3 4, and on this side also 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. So the first point is 0 comma 1, that is this point, right? And the second point is 3 comma 0, that is this one, 3 comma 0. So we will get the first line, right? We will get the first line as this one, correct? And since we know that this line is going to give the feasible region away from the origin, that means it is in this direction. It is in this direction, away from the origin. ठीक है,
अब चाहो तो बहुत सारा एरोज ड्रॉ कर सकते हो, बट ताकि सिंपली रहे, इजी रहे, देखने में ठीक ठाक लगे और मुझे पता चले एग्जाम के टाइम पे कि कौन सा रीजन को मैं लेके काम कर रहा हूँ, इसीलिए एक ही ड्रॉ करना इनफ होता है। तो ये कौन सा लाइन हो गया, ये हो गया x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब दूसरा लाइन जो है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसको भी ड्रॉ करते हैं। वन इज 2,0, द अदर वन इज 0,2। लेट अस ड्रैग दिस लाइन, इस लाइन को भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलो देखो, ये लाइन ऐसा होगा, ये लाइन ऐसा होगा, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर। अब दोनों लाइन जो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो अपना जो फिजिबल रीजन आ रहा है, अपना जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, दिस इज आवर फिजिबल रीजन, दिस इज आवर फिजिबल रीजन। अब ये जो फिजिबल रीजन आपके पास है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, ये आपका हो गया फिजिबल रीजन। अब ये जो आपका फिजिबल रीजन है, एज यू कैन सी हियर, इट इज एन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होने से भी वी हैव टू डू द कॉर्नर पॉइंट थिंग। कॉर्नर पॉइंट थिंग तो इस पे भी करेंगे। देखो देखो अपने पास क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स है, अपने पास क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स है, अच्छे से देखो अपने पास कॉर्नर पॉइंट्स। एक तो अपना ये हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ना, इसका नाम देता हूँ A, इसका नाम रखता हूँ, इस पॉइंट का नाम रखता हूँ B, और ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया, दैट इज आवर पॉइंट C। और तो कोई पॉइंट है नहीं। अच्छा, A पॉइंट अपना कैसा है, A पॉइंट अपना है 0,2, ठीक है। अच्छा, C पॉइंट अपना कैसा है, C पॉइंट अपना है 3,0। अच्छा, B पॉइंट देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, B तो अपना इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो B का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। क्या इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली इसको एलिमिनेशन करेंगे, आ जाएगा। देखो, एक अपना इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, दूसरा अपना इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो इसको अगर मैं एलिमिनेशन करता हूँ, माइनस माइनस माइनस, एंड वी विल गेट y का यहाँ पर 3y से y माइनस हो रहा है, तो हो गया ये 2y, और 3 से 2 माइनस हुआ तो ये हो गया अपना 1, राइट, एज सिंपल एज दैट। अब y का वैल्यू फिर कितना हो गया, इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 1/2, दैट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना होगा, 2 माइनस 1/2, दैट इज 3/2, करेक्ट। तो अपना ये जो पॉइंट B है, देयरफॉर पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3/2, 1/2। ये कितना है, इट इज 3/2, सॉरी 1/2। नाउ लेट अस डू द कॉर्नर पॉइंट मेथड। पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स में अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है उसका वैल्यू निकालते हैं। देखो, सो corner points, what are the corner points that we have 0,2, we have 3/2, 1/2, and also we have 3,0. we have to put it in the objective function, that is 3x plus 5y। चलो पुट करके देखते हैं। इसमें पुट करेंगे 0,2, so it will be 10, this one is 3 3s are 9, and this one will be 9/2 plus 5/2, that is 14/2, that is 7, right। ये अपना हो गया मिनिमम। ये तीनों में से यही मिनिमम है। अब आप डायरेक्टली इसको लिख नहीं सकते हो दैट मिनिमम z is at 3,3/2 and 1/2 and its value is 7। for that you have to check, क्योंकि ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। तो सर कैसे चेक करेंगे, देखो कैसे चेक करेंगे।
to decide what we will do, we will consider that z is less than m. हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि z का ऐसा कोई वैल्यू है क्या जो इस 7 से भी कम है. ठीक है, सो इट इम्प्लाइज दैट z इज लेस देन 7. ठीक है, इसका मतलब अपना इक्वेशन कैसा हो गया, इक्वेशन हो गया z का वैल्यू था 3x प्लस 5y लेस देन 7. ठीक है, यहाँ से भी मैं पॉइंट निकाल सकता हूँ. कैसे निकालूंगा, वैसे ही जैसे अभी तक करके आ रहा हूँ. से लेट अस कंसीडर दैट 3x प्लस 5y is equals to 7. It implies that we can have 2 points. अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करूँगा, so it will go on the other side, it will become 10 by 5, that is 2. And if we take the y का वैल्यू -1, y का वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर रहा हूँ, so it will go on the other side, 12 by 3, that is 4. So 4, -1 एंड -1, 2 इससे एक लाइन फॉर्म करेगा. बट वन थिंग इज वर्थ मैंशनिंग हियर, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, सिंस द साइन हियर is only this less than, thus the line will be dotted. It will not be a solid line like the ones that we have been drawing till now. अभी तक जैसे हम लोग solid line draw कर रहे हैं वैसा नहीं होगा, it will be a dotted line. तो चलो इस dotted line को draw करते हैं. यहाँ पर -1 वैल्यू है, तो -1 इधर एक मैं ले लेता हूँ, -1, और इधर भी -1. So one point is -1, 2, -1, 2. So this is the point, -1, 2, and the other one is 4, -1. That is this point, if I am not wrong. This point, yes, this one, 4, -1. Let us draw the line, and mark my words, it will be a dotted line. It won't be a solid line because it is only less than sign. It is only having the less than sign. So it will be a dotted line. So dotted line हो गया अपना, ये हो गया अपना dotted line. ठीक है, अब ये किस तरफ रहेगा, ओरिजिन के तरफ या ओरिजिन से दूर. चलो इसको देखते हैं जीरो टेस्ट करके. पुटिंग 0, 0, what we are getting, that 3 into 0 plus 5 into 0 is less than 7, implies that 0 is less than 7. Thus true. As a result the region is towards origin. ये रीजन किस तरफ होगा, it will be towards origin. है ना, it will be towards origin. ये जो होगा ये किस तरफ होगा, it will be towards origin. अब देखो सब लोग उधर जा रहे हैं, पूरा रीजन उस तरफ जा रहा है, ये अकेला इस तरफ मूव करने लगा है, राइट. ये अकेला जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है. सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स. और अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है तब हम लोग लिख सकते हैं जो मुझे मिनिमम वैल्यू मिला है, दैट इज ओनली द केस. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, thus z less than m implies that 3x plus 5y less than 7 has no point in common in the feasible region में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है. ठीक है, feasible region में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में भी है,
आप चाहो तो देख भी सकते हो. Therefore we can say that minimum value of z is equals to how much? It is 7. At which point? At 3/2, 1/2. अगर मेरे पास बाउंडेड रीजन होता है तब किस टाइप का सम होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी 1 2 3 देखा है, और भी आगे देखते रहेंगे. बट दिस इज हाउ यू सॉल्व व्हेन यू हैव अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, एंड दैट टू इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. और ये जो डॉटेड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था किसका? 3x + 5y, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंसिडरिंग इट इज लेस देन 7, इसका ड्रॉ किया था. इसका अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है देन वी विल कंसिडर that this 7 which we have got in corner point method, that is only the least possible value. Let us move to the next question in the next video.